Hello students, welcome to the online studies. In today's session, you are going to study about your subject Social Science of Standard 8, Chapter 5, Natural Disaster. Following points we are going to learn in today's session. First one is earthquake, second is volcano, and last is flood. Let's start with the earthquake. The weak upper crust of the earth suddenly experienced tremors, either due to collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the earth. What happens when there is a high pressure inside the earth? Then the earth crust shake. Okay. Waves of earthquake originate from its hypocenter, which is deep down below the surface of the earth. Or then after what happened, the waves like this, the waves of earthquake originate from this hypocenter. Due to this shaking, the earthquake waves, okay, it is generated and which is deep down below the surface of the earth. That means if this is a surface of the earth, then the wave are happen over here deep down in the surface. Such sudden shaking or trembling is known as earthquake, and when this type of thing is happen, then it is known as earthquake. इन शॉर्ट अर्थक्वेक किसे कहते हैं? जब दो प्लेट्स होती है अर्थ में और सडनली उन दोनों के बीच में शेकिंग चालू होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक. अंडरस्टूड? Earthquake waves are created from the epicenter during the process of an earthquake. So epicenter है, epicenter से ही जो earthquake के waves है वो वहां से start होते हैं. It occurred due to the internal disturbance in the earth. और ये क्यों होते हैं? क्योंकि inside the earth अगर कोई disturbance होता है उसके वजह से क्या होता है? ये चीजें होती है. The waves earthquake spread outward from the epicenter. What happened? For an example, take this an epicenter and the waves spread outward from this. Okay, not inside but outside of the point. Understand? The point on the surface if the earth above the hypocenter focus is known as epicenter. तो अब epicenter क्या होता है? जो पॉइंट होता है सरफेस पे जहां से फोकस मेन चीज होती है, मतलब जहां से ये वेव चालू जहां से होता है उसे हम क्या बोलेंगे? एपिसेंटर. द अर्थक्वेक डिक्रीज एज मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर. और जो अर्थक्वेक के वेव्स है, ओके, वो धीरे धीरे जब भी ये एपिसेंटर से दूर जाते हैं वो कम होने लगते हैं. द अर्थक्वेक डिक्रीज एज वी नो अवे फ्रॉम द एपिसेंटर. ओके, अभी डिस्कस किया, वो जैसे ही दूर जाता है वैसे ही क्या होता है? वो अर्थक्वेक कम होने लगता है. We can measure the intensity of the earthquake and know its point of origin with the help of seismograph. तो जो चीजें बनती है उसके लिए हमेशा उसको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स हमारी साइंटिस्ट बनाते हैं. और जो अर्थक्वेक है वो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, उसका मेन ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे, ये सब चीजें ढूंढने के लिए भी साइंटिस्ट ने एक इक्विपमेंट बनाया. उसको नाम क्या दिया है? सेस्मोग्राफिक. और उसी से क्या होता है? हम ये चीज ढूंढ सकते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ से स्टार्ट हुआ है और उसका मेन फोकस कहाँ पे है. अब हमने ये तो देख लिया कि अर्थक्वेक होता है, बट व्हाट आर द रीजंस? देयर आर थ्री मेन रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक. फर्स्ट वन इज अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन. ओके, वोल्केनिक इरप्शन पता होगा किसे कहते हैं?
हम फर्दर आगे देखते हैं। Earthquake caused by strike slip faults, earthquake caused by subduction in an active subduction zone। तो ये तीन ऐसे रीजन है जिसकी वजह से क्या होगा, earthquake हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वोल्केनो। Volcano refer to an opening of the earth crust from which various things are ejected from the below of the earth surface। अब हम volcano किसे बोलेंगे, volcano जब अर्थ से जो उसका ओपनिंग होता है, अर्थ क्रस्ट का जहां से ओपनिंग होता है, विथ वेरियस ऑब्जेक्ट which is ejected from the below of earth surface, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वोल्केनो। अब वो क्यों होता है, उसके भी चार मेन रीजन है। फर्स्ट क्या है, हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। फर्स्ट क्या है कि जो इंटीरियर है, मतलब अर्थ के जो अंदर इंटीरियर पार्ट है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है हाई टेम्परेचर से। सेकेंड है क्रिएशन ऑफ मैग्मा। थर्ड है क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर्स, एंड लास्ट है राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। तो ये चार रीजन है जिसकी वजह से वोल्केनो इरप्ट होता है। फर्स्टली क्या होता है, द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड बाय द गैस लाइंग अंडर द मैग्मा। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट, और जब ये गैस मैग्मा को अपवर्ड पुश करता है उस टाइम क्या होता है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो और ज्यादा तेजी से खुलना चालू होता है। सेकेंडली द वाटर pre-cooling through the cracks and opening of weak rock surface turn into vapor, और इसी की वजह से क्या है, जो वीक सरफेस है अर्थ का वहां से वो फटना चालू होता है, क्रैक वहां से चालू होता है। This vapor is full of pressure owing to lack of space and tries to come out with great force। अब इसमें ये चीज दी है कि जब बाहर निकलने के लिए उसके पास जगह एकदम कम होती है तो वो बहुत फोर्स से ज्यादा आता है। एक एग्जांपल है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, एक पाइप से आप ये एग्जांपल कर सकते हो। ऐसा पाइप जिससे आप प्लांट को अगर पानी पिलाओ तो आप उसे अगर जोर से प्रेशर करोगे, ठीक है, मतलब क्लोज करोगे, तो जितनी स्पेस है वहां से वो और फास्टली बाहर निकलेगा, और अगर उसका सरफेस बढ़ गया तो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है, सेम चीज वोल्केनो में भी होती है। जब बाहर निकलने के लिए उसको जगह कम मिलती है तो वो बहुत प्रेशराइज से बाहर आता है, और जब उसको जगह ज्यादा मिलती है तो ऐसा कुछ इशू होता नहीं है। दिस वेपर ऑल्सो कॉज मैग्मा टू राइज अप, और ये जो वेपर होता है, ठीक है, जो वाटर से बाहर आता है, और उसके साथ क्या होता है, मैग्मा को भी ये बाहर लाने के लिए ट्राई करते हैं। Various substances like lava, rock, fragments, ashes, dust and gases are ejected from the below of Earth's surface and from in a mountain-like structure, और धीरे धीरे ये जो भी सब्जेक्ट है ये सब बाहर आने चालू हो जाते हैं from the Earth surface and in the form of mountain-like structure, और वो धीरे धीरे एक mountain-like structure में बदल लेते हैं। अब there are three types of वोल्केनो। फर्स्ट कौन सा है, एक्टिव वोल्केनो, सेकंड है डोरमेंट वोल्केनो, और लास्ट है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब फर्स्ट है आपको एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो मतलब जो करंटली एक्टिव हो, जैसे आप ये फोटो में देख सकते हो, द वोल्केनो इज करंटली हैपनिंग। यू कैन सी ओवर हियर द रेड लिक्विड इज कमिंग आउट, दैट इज मैग्मा with many other gases, and this is known as dormant volcano, मतलब at the end of the volcano। There are various advantages of volcano, like the fertility of the land increases due to volcano। अब इसमें क्या है कि volcano जब इरप्ट होता है तो उसके बहुत सारे advantages भी है। Some of them are, first one is due to volcano the fertility of the land is increases। Why? Because the soil get more and more fertility।
The agriculture area in Java and Samrata are very good for agriculture because they are made up of volcano eruption। और ये जो दो एरिया का नाम दिया है, इसमें जो एग्रीकल्चर होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि वो जो एरिया में वो एग्रीकल्चर करते हैं वो किससे बना हुआ है? वोल्केनो इरप्शन से। Due to volcano, there is a rich soil present in the area and farmer to obtain abundant crop production। और ये सब एडवांटेजेस ही है वोल्केनो के। तो वोल्केनो जब होता है तो सॉइल जो होती है वो बहुत रिच हो जाती है, उसे जो भी सब्सटेंस चाहिए वो बहुत ज्यादा उसे मिलने लगता है, और जिससे क्या है, फार्मर रेगुलरली एबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब एक बहुत हाई लेवल पे क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैनी मिनरल्स कैन ऑब्टेन इजीली, और वोल्केनो से बहुत सारे मिनरल्स जो धरती के अंदर होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं, और उसी वजह से बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है जो इजीली हमें ऑब्टेन हो सके। द स्मॉल रॉक विच इज थ्रोन आउट बाय वोल्केनो इज नोन एज लापिली। और एक जो स्मॉल रॉक जो होते हैं जो वोल्केनो से बाहर निकले होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लापिली। और ये चीज भी बहुत यूजफुल होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लड। द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड फ्लड। सिंपली फ्लड किसे कहते हैं? जब रिवर में बहुत ज्यादा एक्सेस पानी भर जाता है तो फ्लड आता है। गेटिंग इट? अब इजी अगर हम एग्जाम्पल में ये चीज बात करें, अगर मैं कोई चीज आपको बार बार इरिटेट करे, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पर्सन आपको बार बार इरिटेट करे एक ही पॉइंट को लेके, देन व्हाट हैपन? योर एंग्री कम्स आउट। ओके, आप गुस्सा हो जाते हो। वही चीज यहाँ पे होता है, जब एक्सेस होता है पानी का, इसीलिए वो रिवर में से एक्सेस वाटर बाहर आ जाता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लड। फ्लड अकर ड्यू टू टू मेन रीजन। और फ्लड क्यों होता है? उसके दो मेन रीजन है। फर्स्ट वन इज हैवी रेन इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर। सिंपल है, जब ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा? जो रिवर है वहां पे एक्सेस ऑफ वाटर अमाउंट कलेक्ट होगा, एंड देन आफ्टर फ्लड happen। And second is, if a dam on river breaks, flood occur in the low lying area on the river बैंक। और सेकेंड चीज क्या है? जब रिवर में एक्सेस वाटर होता है और उसी से वो वाटर जब डैम में जाता है और डैम की कैपेसिटी से ऊपर अगर पानी चला जाता है, डैम मे बी दिस डैम ब्रेक्स, एंड फॉर दिस फ्लड अकर इन द लो लाइंग एरिया ऑफ द रिवर बैंक। और जो डैम या फिर रिवर के जो लो लेवल में रहते हैं, नीचे वाले हिस्से में, तो वहां पे क्या होता है? फ्लड आने के चांसेस होते हैं। अब इसी में ये जो एक फोटो है, ये एक मूवी के क्लिप में से ली हुई है, ठीक है? केदारनाथ, अगर आपने देखी होगी तो बहुत अच्छी मूवी है। उसके अंदर भी फ्लड का एक सीन बताया है। ओके, तो ये भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि फ्लड कितना कुछ तबाही भी कर सकता है। तो प्रिकॉशंस भी होते हैं उसके, वो हम चीज अगर पहले से ध्यान रखें तो बेटर है। और ये प्रिकॉशंस है, ये चीज आप आपके अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हो। सो ऑलवेज बी कॉशियस। अब ये कुछ ऐसे नेम ऑफ रिवर है जहां पे क्या हुआ था कि फ्लड आए थे। फर्स्ट क्या है? गंगा यमुना रिवर। वो कहां पे आया था? कौन से अफेक्टेड एरिया थे वहां का? नॉर्थ इंडिया। और कौन से साल में? इन द ईयर 1978। सेकेंड है माचू, फ्लड अफेक्टेड एरिया था मोरबी, और इन द ईयर 1979। देन इज तापी, फ्लड अफेक्टेड एरिया आर सूरत इन 2006। लास्ट वन इज कोशी विच इज इन बिहार इन द ईयर 2008। इसके बाद भी बहुत सारे फ्लड आ चुके हैं, बट ये कुछ ऐसे फ्लड के नाम दिए गए हैं जो आपके बुक में भी रिटन है, हेल्पफुल है। This was the end of today's session. We have discussed about 3 natural calamities, and we will discuss more natural calamities in the next session. I hope you are learning
regularly and gaining knowledge